Vapor density is the ratio of the vapor density is the ratio of the mass of certain volume of a gas. Vapor density is the ratio of the mass of certain volume of the gas, oblique vapors, means it can be a liquid also, which is now in vapor form, to the mass of the same volume of hydrogen. Mass of the same volume of hydrogen. Now, recently we did Lussac law, yes or no? And in Lussac law, we saw that volumes will bear the simple rule of the ratio under similar conditions of temperature and pressure. So we know that volume of a gas may change if the temperature or the pressure will change. So same condition here. Vapor density is the ratio of volume of a gas, yes or no? Certain volume of the gas, mass of certain volume of the gas, to the mass of same volume of hydrogen. Under in bracket right now, under same temperature and pressure, under same conditions of temperature and pressure. Now let's understand what is vapor density. VD formula is mass of certain volume of a gas, whatever gas this is, upon mass of same volume of hydrogen. We also write it as vapor density, although it is not compulsory, mass of 1 liter of a gas upon mass of 1 liter of hydrogen. Let's see. Why are we considering the mass of the gas? Beta, density. How can we say a gas is dense, more dense or less dense? For calling it more dense or less dense, we have to compare it with something. सही बात है कि नहीं? हम कैसे बोलते हैं कि भाई गैस ज्यादा भारी है, गैस कम भारी है, तो हम उसको स्टैंडर्ड गैस से कंपेयर करते हैं, जो कि कौन सी है? हाइड्रोजन. या फिर आप बोल सकते हैं सबसे लाइटेस्ट गैस, इसके बाद हीलियम आता है. हाइड्रोजन का बलून अभी हम बनाएंगे, हाइड्रोजन एक दिन, तो हाइड्रोजन के बनाएंगे, देखेंगे उसका बलून जो है वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है आसमान में, ऊपर की तरफ राइज करेगा बलून. दैट विल राइज अप. तो लाइटेस्ट गैस होती है हाइड्रोजन, उससे कंपेयर करते हैं बेटा. अगर गैस भारी होगी, उसका मतलब है उसके पार्टिकल्स जो है गैस के पास पास है, पास पास है तो ज्यादा डेंस हो जाएगी, उसकी वेपर डेंसिटी ज्यादा होगी. अगर उसकी हाइड्रोजन से कम डेंसिटी है तो उसको वो तो हो नहीं सकता, बट हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगी. सो वी कैन इवन कंपेयर टू गैसेस. कौन ज्यादा भारी है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किस गैस की डेंसिटी कम है, वेपर डेंसिटी के हेल्प से उन सबको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे. लाइक वी फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. सबको किससे कंपेयर करते हैं? हाइड्रोजन से करते थे, फिर करने लगे 1/12 ऑफ कार्बन से. कितना भारी है, सही बात है ना? सो वेपर डेंसिटी भी हाइड्रोजन से कंपेयर करता है. मान लीजिए आपने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन रखी है और उसी वैसे ही सिलेंडर में दूसरी गैस रखी है, तो जो सिलेंडर ज्यादा भारी लग रहा होगा वो ज्यादा वेपर डेंसिटी वाला हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज्यादा डेंस होता है सॉलिड उतना भारी तो होता है. स्पंज देख लीजिए आप, कम डेंस होता है तो हल्का सा होता है. metals are very dense, particles are closely packed, so it's less dense, so mass is also less. भारी भी कम होता है, सही बात है कि नहीं? वेट भी कम हो जाता है. so mass of certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen. is that clear to you? Easy. Avni, is this clear beta? Ananya? Yes, sir. Understood? Now vapor density is equals to molecular weight upon 2. Vapor density is molecular weight into 2, or we can say molecular weight is equals to 2 into vapor density. First formula, second formula, and these are the forms of the third formula. Now it's very easy to remember this formula. Let's see.
Children generally get confused. They write VD equals to 2 into molecular weight. Look here, M has what? 1, 2 and V. ऐसे याद कर सकते हैं। M में क्या होता है? 2 sticks होती है और एक V होता है। So M होता है 2 into V. Easy. Easy to remember. Aid to the memory. इसे हम याद रखने के हेल्प हो गई है। M में M को अगर ब्रेक करें हम तो उसमें 2 sticks होती है और एक V होता है। So M is equals to 2 into vapor density. This is clear to you? Now quickly come to this page beta. Quickly come to questions of vapor density. Yes, page number 83. Quickly come, and then we'll do the unsolved ones also. And after vapor density, we are moving on to empirical formula. Right. And because we're going to put it on YouTube for you, so you can see it again and again. Don't say, sir, it is still not clear. There is no reason for that. आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, सही बात है। अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अ गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन, एक गैस सिलेंडर है और उसमें हाइड्रोजन भर दिया है और हाइड्रोजन का मास कितना दिया है? 50 ग्राम। सो मैं लिखूंगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है 50 ग्राम्स। The same cylinder holds 200 grams of gas A and gas B. Okay. Mass of same volume. Same cylinder है तो same volume होगी. Same volume of gas A. बहुत बारी है तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 200 and mass of same volume of gas B would be what? It is given as 500 grams of gas B. Considering the same conditions of temperature and pressure in the cylinder, calculate the relative molecular mass of gas A and gas B. Now we need relative molecular mass. See, for finding relative molecular mass, we need molecular formula. Like if I have oxygen O2, I can find its molecular mass or molecular weight easily. Oxygen का होता है 16 into 2, 32 आ गया। But अगर आपके पास गैस का molecular formula ही नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसा आएगा? ये फॉर्मूला ही नहीं पता था। सो वी कैन कंपेयर इट विद व्हाट? हाइड्रोजन। किससे कंपेयर कर सकते हैं उसे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से कैसे? हाइड्रोजन से कंपेयर करके हम उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी का डबल मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलिए बताइए, Vd ऑफ गैस A, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ये होगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस A अपॉन mass of same volume of hydrogen. Is that clear? Now you may say that, sir, how do you know that the volume of both the gases are same? All the gases are same, beta, because they are kept in the same cylinder. And now still, even if you keep things in the same cylinder, we cannot guarantee that volumes are same, because volume of a gas is indefinite. Indefinite मतलब ये बढ़ घट सकता है easily. ये सेम तभी रहता है अगर क्या रहे? टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कर लेता है, बट नहीं, अगर प्रेशर सेम है कंटेनर के अंदर तो उस कंटेनर के अंदर ही कंटेन रहेगा वो। ठीक है। और अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर आपने प्रेशर कम कर दिया, रिलीज कर दिया और वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रही है तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, मींस चेक हियर, in case if we keep volume constant, volume what? Constant. So we know P1 V1 upon T1 होता है। so अगर V constant हो गया, so ये constant है, V तो हट गया हमारा, so pressure is directly proportional to temperature। मतलब अगर किसी गैस को आप प्रेशराइज करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। मान लीजिए आपने बोला सर सेम सिलेंडर में है तो वॉल्यूम तो सेम ही है, प्रेशर अलग अलग हो सकता है, तो बेटा अगर प्रेशर अलग हुआ तो टेम्परेचर भी अलग हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। जितने भी बाइक्स इंटरनल कंबशन, जितने भी बाइक में इंजन लगे उनमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। पेट्रोल को ले जाते हैं, गर्म होते पेट्रोल, गर्म होने से नहीं चलता, उसको पिस्टन जो होता है प्रेशराइज करता है, ऐसे होल होता है, उसको पिस्टन लगा होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों का जब कभी भी दिखाते हैं, ऐसे पिस्टन दबाता है गैस को। गैस को जब हम प्रेशराइज करते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, गैस बर्न हो जाती है।
ठीक है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम उतनी ही रहेगी जितनी सिलेंडर के अंदर है. This is right. If I bring it out at the same temperature and pressure, then I cannot confine it to the same cylinder volume. ऐसे नहीं कि मैंने रूम में निकाल दिया गैस तो बस सिलेंडर की शेप में ही रहेगी. नहीं, वो तो स्प्रेड होती रहेगी, वो तो फैल जाएगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत कम है. बट अगर आपने सिलेंडर के अंदर रखी हुई है तो वो कांस्टेंट रहेगी उसी के अंदर. ठीक है, वॉल से प्रेशर भी सेम लगाएगी और उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम. इज दिस क्लियर? चलिए, so 50 how much? So 50. what is the unit for vapor density? What is the Unit for vapor density. no unit? It is a pure ratio. There is no unit बेटा. देखिए ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा because it is a pure ratio, so no unit. This is coming as how much? 4 times. And if vapor density is 4 times, what will be the molecular weight? I just told you M में होते हैं 2 sticks और 1 V. Vapor density 2 into 4 and this will be 8. Is that clear? Second, vapor density of gas B. अनन्या मिक्स नहीं कर सकते बेटा दोनों को. मिक्स में तो मिक्स्ड वेपर डेंसिटी आ जाएगी अपॉन 50 ग्राम, so it will be 10. And what will be the molecular weight? Molecular weight would be 2 into vapor density and this is 2 into 10, 20. Easy है. Please try to visualize. We have 3 cylinders. One cylinder is gas hydrogen, the other one is gas A, the other one is gas B. We have to find the vapor density. Vapor density मतलब कौन ज्यादा डेंस है. डेंस ज्यादा वही होगा जो ज्यादा भारी होगा. कैसे कंपैरिजन किया? हाइड्रोजन की कंपैरिजन में देख लिया किसका सिलेंडर भारी है. अगर ज्यादा भारी है हाइड्रोजन से तो वेपर डेंसिटी ज्यादा है, और कितना ज्यादा भारी है उससे उसकी एग्जैक्ट वीडी आ गई. वीडी का डबल कर दिया, वी गॉट द मॉलिक्यूलर वेट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसमें? अभी करेंगे डिस्कस मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है. चलिए बताते हैं. मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मॉलिक्यूल का वेट. दैट्स मॉलिक्यूलर वेट. लेट्स राइट डाउन. आई एम राइटिंग H2O. Weight of relative atomic mass of hydrogen is 1. Please ask if you don't know what is relative atomic mass. Relative atomic mass of hydrogen is 16. So this is 2 plus 16. तो क्या हो जाता है? 18. This is not grams. This is AMU. Atomic mass unit. अब ये atomic mass unit क्या चीज है? क्लास 9 में सीखा था. फिर से बताऊं बेटा आशु. AMU. चले बताते हैं फिर से. आशु इज क्वाइट. देखिए, it is impossible to write actual mass of each element. Impossible because it will come in decimals and it will be so small. 10 to the power minus 27 तक जा सकता है. बताइए, इतना कम होगा अगर एटॉमिक मास इतना कम होगा तो उसे लिखेंगे हम कैसे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके मासेस बहुत कम होते हैं. समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, एटम्स के मास लिख ही नहीं सकते हम पीरियोडिक टेबल में. सो वी कंपेयर इट विथ, इनिशियली वी कंपेयर्ड इट विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के रिलेशनशिप में कितना है? मान लीजिए एक बच्चे का वेट है 6.2233. दूसरे बच्चे का मान लीजिए 1.2233 है. दूसरे बच्चे का है 2.4466. अगले वाले का फिर 1.2233. तो आप कहेंगे सर सबका सेम आ रहा है लगभग 1.2233. ये भी इसका 3 टाइम्स है. मान लीजिए इसको 1 कर लें, अगर एक थोड़ा चेंज कर रहे हैं 2 मान लीजिए अगर ये हो जाए 3.6633. बोल के सर ये भी कुछ इसी के जैसा लग रहा है, क्यों ना हम सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड करा दें 1.2211 से. तो पहला वाला आ जाएगा 1, दूसरा वाला आ जाएगा 2, तीसरा वाला भी 1, फोर्थ वाला 3. अब सबके इजी वेट आ गए ना. हम क्या करते हैं, सब एटम्स के मास को हाइड्रोजन से डिवाइड करा देते हैं. फिर हाइड्रोजन से ना कराकर, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम से ना कराकर हम देखते हैं बेटा 1/12 ऑफ कार्बन. व्हाट ऑफ कार्बन? 1/12 ऑफ कार्बन. याद आ रहा है कुछ? कार्बन का अपना वेट होता है 12. 12 नहीं है, मतलब 12 टाइम ऑफ दिस नंबर, वो जो सेम नंबर है उसको 1 जैसे 12 होता है उसको 12 से डिवाइड कराते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाती है हमें, वो जो भी नंबर है.
सबसे छोटी वैल्यू जो होगी पीरियोडिक टेबल की, और उस सबसे छोटी वैल्यू से सबके वेट को डिवाइड करा देते हैं, तो सबका वेट ऐसा आ जाता है 1 2 3 4। हाइड्रोजन का वेट 1, हीलियम का 2, फिर 3, फिर 4, आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। बताइए, इतना क्लियर हुआ आशु? बट सो सर हम क्या करते हैं, सबके इसमें वेट को 1/12 ऑफ कार्बन से डिवाइड कराते हैं, so that is called relative molecular mass, relative atomic mass. Is this clear? Relative atomic mass. सर ये ये मॉलिक्यूलर वेट है, इसका कोई यूनिट होगा? इसका यूनिट होगा AMU, atomic mass unit. Is this clear? यस और आप पूछेंगे कि सर ये 1 AMU जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने 9th में नहीं पढ़ी थी? ये होती है 1.66 into 10⁻⁻27 ग्राम kg। 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ये होता है एक हाइड्रोजन के एटम का वेट। सोचिए ना, -27 kg का मतलब हुआ 1.66 -27 kg का मतलब है 27 प्लेसेस, जीरो को उधर भेज दीजिए, 27 जीरो के बाद जीरो लगाइए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी वैल्यू लिखना। सो मैं करते हैं उस वैल्यू से सबको डिवाइड कराते हैं, तो मिलता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये जो दूसरे के रिस्पेक्ट में आप जिसे बोल देते हैं कि सर ये मेरा फ्रेंड आया तो डबल खाना खाएगा सर, मान लीजिए पार्टी पे आपने बुलाया, बोल के सर ये तो डबल है इसकी डाइट। दूसरा है, आपने बोला सर इसकी डाइट तो ट्रिपल है, सो यू आर कंपेयरिंग हिज डाइट विद समवन हु हैज द मिनिमम डाइट, जिसकी स्टैंडर्ड डाइट है मान लीजिए 4 चपाती इसी के ना 4 रोटी खा लेता है। दूसरा वाला है, आपने बोला सर इसकी डबल है, मैं समझ जाऊंगा ठीक है तुम नहीं खाएगा, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू। थर्ड वाला है तो फोर्थ, नाउ बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, हर एक रोटी का वेट इतना होना चाहिए, सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है आपने, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए रोटी का। बताइए, वैसे तो बहुत बड़ी रोटी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर वाली, बट फिर भी 15 सेंटीमीटर इतने स्पेसिफिकेशन कौन बताए? आपने बोला सर स्टैंडर्ड हो गया एक बच्चा, जितनी इसके लिए बना रहे हैं आप रोटी सब्जी दाल जो भी बना रहे हैं उससे डबल उसको देना है, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दें। सेम यहाँ पे देख लेते हैं 1/12 ऑफ कार्बन एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है, उससे सबको डिवाइड कराते हैं, देन वी गेट स्टैंडर्ड नंबर्स। ये क्लास 8 का है बेटा। था वो जो है 1.16 10⁻⁻27 उससे सबको डिवाइड करा देते हैं, और उससे बोलते हैं AMU। All of these values are in AMU, but if I write these values in gram like this is, एटम का मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का निकाला तो उसे बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और अगर इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ, 18 हो गया है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर इसको हम ग्राम में लिख देंगे तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही। देखिए छोटी छोटी चीजें हिली रहती है ना, इसलिए आपको बड़ी चीजें एक्सप्लेन करे तो समझ नहीं आती है। दिस इज वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग, गुड बेटा। पता होना चाहिए आपको, ये तो क्लास 8 का है। फिजिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में 9th में तो पूरा टॉपिक है RAM लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ही है शायद, इनिशियल पेजेस में ही। कोई बात नहीं, नाउ यू नो आशु बेटा, यू नो व्हाट इज RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब 1/12 ऑफ कार्बन निकाल लिया, कार्बन स्टैंडर्ड है हर जगह, उसका 1/12 आता है 1.16 10⁻⁻27, उससे सबके वेट को डिवाइड करा दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई सबका वेट कितना कितना होगा। उससे बोलते हैं एटम का निकाल रहे हो अगर किसी का, तो रिलेटिव एटम का मास एटॉमिक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का आया तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्योंकि ये सब वजन का ही गेम है, ये सारा वजन का गेम है, और वेपर डेंसिटी भी वजन वाली है, तो ये जाती है 2 into वेपर डेंसिटी अगर कर देते हैं तो आ जाता है अपना क्या, मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी से। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड, एनी डाउट? पक्का? यस। इसमें तो लेकिन लिखा हुआ है जैसे वो मिक्स हो रखा है ना, क्योंकि सेम सिलेंडर है, तो सेम सिलेंडर में तो सर दोनों गैसेस मिक्स नहीं हो जाएंगी? नहीं, सेम सिलेंडर का मतलब है बेटा तीनों मिक्स हो जाएंगे फिर तो। अ गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ अ गैस, बिल्कुल सही बोला मैंने। द सेम सिलेंडर होल्ड्स, सेम सिलेंडर में वैसे मत सोचिएगा, इसका मतलब है कि उसी की तरह का एक सिलेंडर है, हाँ दूसरा सिलेंडर है, सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम ऑफ अ गैस ए, मतलब उसी के अंदर नहीं भर रहे हम। अगर लिखा होता इन द सेम सिलेंडर वी आर पुटिंग दिस तो वो होता, एंड फिर 5 गैस ऑफ बी, कंसिडर सेम करंट टेंपरेचर प्रेशर इन द वॉल्यूम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ। यस, इज दिस क्लियर? यस।
अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्विकली. Okay, so I pause the recording. You can take it as the same cylinder also, no problem. चलिए come to the next question. Question number 17. Let's see. ज़्यादा हो गया बेटा केमिस्ट्री यार. कोई नहीं, कर लेते हैं. Question number 17. A gas cylinder can hold 1 kg of hydrogen. So mass of certain volume of hydrogen is 1 kg. We don't know what's the volume at room temperature. Calculate the weight of carbon dioxide it can hold under similar condition of temperature and pressure. So mass of CO2 goes to question mark. Under the same condition of temperature and pressure. Now in the question, let's see. We know what is the molecular weight of CO2. Molecular weight of CO2 would be carbon plus O2. Carbon का कितना होता है? It's given in the question. 12. Oxygen is 16 into 2. 16. What will it be beta? 16 plus 32. कितना हो जाएगा? 44. What will be the vapor density? Vapor density of CO2 will be, yes, molecular weight of CO2 upon 2. 28. So it will be 44 upon 2. Very good beta. चलिए, mass of CO2, we have to find same volume of CO2 upon what is the mass of hydrogen? 1 kg. So CO2 देखिए कितनी भारी होगी? 22 kg. ठीक है? Understood beta? चलिए, copy quickly. Yes. The vapor density 1 से कम हो सकती है? ओके, वेपर डेंसिटी अगर 1 से कम हो गई तो इसका मतलब गैस हाइड्रोजन से भी क्या हो जाएगी? लाइट. बात ये क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज वॉल्यूम को हम एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर सकते हैं गर्म करने पर. अब बताइए, एक पर्टिकुलर गैस भी दूसरी गैस से हल्की हो जाती है अगर उसे गर्म कर देते हैं, बट नॉट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब देखिए, मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है तो गर्म गैसेस ऊपर जा रही है, गैस छोड़िए सॉलिड भी ऊपर जा रहा है उड़ती. स्मोक पे तो सॉलिड होता है. सोचिए NH4OH भी ऊपर उड़ता है, फ्यूम्स जितने होते हैं सब ऊपर जाते हैं, बिकॉज टेम्परेचर हाई होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है. ये तो हमें पता ही है, गैसेस में भी सेम है. इफ द gas has a higher temperature, it will surely rise up. Is this clear? So vapor density, but not compared to hydrogen under same condition of temperature and pressure. So we can say no. If both are at same temperature and pressure, then never. Clear? Yes, sir. 700 ml of pressure. Now this is a gas. It occupies volume of gas is 700 ml at a pressure of, this is volume 1. Pressure 1 is what? 700 mm and temperature is 57 degrees Celsius. We'll convert it into Kelvin. For that we'll add what? 273 Kelvin. Temperature 1, 83, how much? 330 Kelvin. Understood or not? P1, V1, T1. Now, if hydrogen will also be at the same temperature and pressure, then it is fine. But if hydrogen is not at same temperature and pressure, then we cannot do any comparison between these two gases. Let's read the question. If at STP, gadbad ho gaya. If at STP, the mass of the gas is 1.5 grams, find the vapor density and molecular weight of the gas. I am reading the question again for you. Now, question says, if at STP, the mass of the gas is this. We have the mass of the gas, but that mass is at what? STP, standard temperature and pressure. But right now, this gas is not at STP. So let's take this gas to STP. What is standard temperature and pressure? Standard temperature is 273 Kelvin. Standard pressure is 760 mm of Hg. Now you'll say, sir, why do you want to take this gas to STP? Because its mass is given at STP, and when we'll read the question further, it says, given that 1 liter of hydrogen weighs this as STP. Bas, khatam.
हाइड्रोजन का वेट भी जो है वो किस पे दिया हुआ है, एसटीपी पर। अब आप बोलिए सर एसटीपी पे क्यों जाए हम, क्योंकि जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदलेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, बदलेगा। अभी शायद हो सकता है गैस बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हो, टेम्परेचर ज्यादा है पर प्रेशर कम है, हो सकता है बड़ी लग रही हो गैस, है ना, बट एक्चुअली में वॉल्यूम जब निकालेंगे तो आएगी बहुत कम, थोड़ी कम। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, नथिंग इज कांस्टेंट सो विल यूज द गैस इक्वेशन पीवीटी। अच्छा हमने इसको अज्यूम कर लिया था एसटीपी पे, एसटीपी पे अज्यूम नहीं, क्वेश्चन हमने एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर ये होता है, वॉल्यूम। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको एक गैस दिया हुआ है इस कंडीशन में, आपने उसका टेम्परेचर जो था वो कम कर दिया 273 और प्रेशर जो था वो ज्यादा कर दिया, तो उसको कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं, कितना है ये 700 mm। आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स, यूनिट सब सेम है, 700। इस लॉ का नाम था गैस इक्वेशन। यू हैवंट सीन द फर्स्ट वीडियो, इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 3 गैस लॉज। उसमें देखिएगा मोल जब हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया है तो क्लास 9th के सारे गैस लॉज बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसको, गैस लॉज को, बट बेसिक से क्लियर नहीं है तो बताइए। अब देखिए आज रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया हमने, इससे बेसिक क्या हो सकता है 330 T2, maybe some of you will surely check it in the month of December or January, तब फायदा नहीं है बेटा, तब तक तो एग्जाम्स आधे से ज्यादा हो चुके होंगे। चलिए लेट्स सॉल्व, so when we'll solve this we'll get the correct volume as 700 into 700 upon 330 into 760 into 273. Now remember this is not maths, you cannot leave your answer in mixed fraction form, पूरा डिवाइड कराना पड़ता है इधर, डिवाइड कराना नहीं, आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चॉकलेट लीजिए, मोहल्ले में कोई 7th 8th का बच्चा होगा उससे सीख लीजिए, बताइए तो कोई सीखने की चीज नहीं है, सही बात है कि नहीं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, डिवीजन तो है बेटा सिंपल, 3 9s 3 1s, इज दिस क्लियर, आगे बढ़े। सो वॉल्यूम 2 इज कमिंग एज 77 4900 अपॉन into 91 upon 110, sorry 00 can also get cut by, no the 0 was not left, 0 पर किसने लिखा है यहाँ पर, गलत बात है, 0 तो कट हो गया था बेटा, कट नहीं था, हाँ ये कट हो गया ना 0, so only 11 and then what else do we have 76, we can cut it 2 2 3s are 6 2 8s are 16, बताइए 2 2s are 4 2 4s are 8 2 5s are 10 2 0s are 0 2 1s are 2 2 9s are 18 2 1s are 2 2 2s are 4 2 2s are 4 2 5 10, बताइए तब बेसिक भी बता रहे हैं, वॉल्यूम 2, आगे डिवीजन भी बताऊं, पक्का कर लेंगे, 19 into 11 होता है 9 1 9 into 1 209, बताइए ऊपर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं और फिर ऐसे करके जो डिवीजन होता था ना छोटे बच्चों वाला, आराम से डिवाइड कराएगा, आंसर विल कम। थोड़ी लंबी है, चलती है, ये एग्जाम में जरूर आता है टर्म में और फर्स्ट प्री बोर्ड्स में टीचर्स बहुत जरूरी देते हैं ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को डराने के लिए, इससे पढ़ लें। So it will come out to be 533.37 वॉल्यूम, ये है असली वॉल्यूम गैस का, गैस का असली वजन आया, अभी वेपर डेंसिटी तो शुरू ही नहीं हुआ बेटा, अभी हमने क्या किया, ये गैस इक्वेशन से हमने फाइंड किया है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बताइए हमें कितना वॉल्यूम दिया था 700 ml, बट रियलिटी में गैस कितना होगा 533.37, ओके कॉपी क्विकली, बहुत आसानी से आ जाएगा, देखिए कॉपीड, should I erase it beta, copy quickly, done, चलिए please take the screenshot if you haven't done, alright let's see, अब लिखते हैं स्टेटमेंट हम 533.3 ml 3 ml or you can write 37 ml, sorry 37 ml of gas, of this gas has a weight of what, has a weight of mass of, शुरू में लिख देते हैं mass of, ऐसे mass of 5 of gas at STP
इज हाउ मच, कितना दिया था मास क्वेश्चन में, देखिए 1.5 ग्राम। बट बेटा हाइड्रोजन का मास कितना दिया है, कितनी वॉल्यूम का दिया है? हाइड्रोजन का मास दिया है मास ऑफ आई एम जस्ट चार्जिंग दिस मास। देखिए हाइड्रोजन का कितना दिया है मास, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है हमें। मास कितने हाइड्रोजन का दिया है, बिल्कुल आराम से देखिए, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। मास तो आप 1 लीटर हाइड्रोजन का देख रहे हैं एसटीपी, तो ये वाली गैस का मास भी कितने लीटर का होना चाहिए था, 1 लीटर का। बट ये कितने ml का है, 533.37। बिल्कुल वॉल्यूम सेम नहीं हुआ अभी, अब वॉल्यूम भी सेम करना पड़ेगा। सोचिए इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, पहले टेम्परेचर और प्रेशर को सेम बनाकर वॉल्यूम निकाला। हमें दिया था वॉल्यूम 700, असली वॉल्यूम आया 533। अब इसी वॉल्यूम से देखिए हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल, अगर हम इसकी वो निकाल दे कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट वॉल्यूम से बना आ जाए। हाँ डायरेक्ट वॉल्यूम सिमिलर आ जाए। आप ऐसा ही करिए कि वहां पे 1 लीटर का नहीं आ सकता, वॉल्यूम तो नहीं आ सकता, वॉल्यूम तो वहां से खुद ही आएगा ना। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन दिया है बेटा, बताइए कितना दिया है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन में देखिए 0.9 ग्राम। 0.09 ग्राम, आशुतोष कितना कम है। और अगर मैं निकालू बेटा यूनिटरी मेथड, मास ऑफ 1 ml ऑफ गैस, बच्चे स्टेप स्किप कर लेते आराम से, ये तो पता ही होता है सबको, 533.37 ठीक है ग्राम्स। और अगर मैं बोलूं आपसे मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है बेटा 1000 ml। 1000 ml के लिए आप क्या करेंगे, 1.5 533.37 इंटू 1000 ग्राम्स, तो ये आएगा बेटा 1500 अपॉन 533.37। Should I divide this and show you? You can even put 2 more zeros, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलिए माइनस करा दीजिए, कैरी वही होगा, ये कैरी के चक्कर में हुआ है। देखिए 10 में से 9, 10 में से 9, 10 में से 9 और 10, 10 में से 4 गए 6, 9 7 गए 2 3, तभी ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए इन चीजों को। 4 ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे इसलिए सो रहा है। बताइए 5 की टेबल में 43 कितना होगा, 5 8 सा लग रहा है ना, बट होगा नहीं, 5 8 से 40, 8 से 24 होता है, 42 जा भी सकता है, चलिए करके देखते हैं। 2.8 कर लेंगे अब तो आप, इजी लग रहा होगा, but it is time consuming. I am not saying it is not time consuming, but then it is not difficult. Is this clear? So it will come out to be, value is 2.81. Up to 2 decimal places is fine, but you can even ask your teachers. हाँ 2 decimal places तक तो आसानी से निकल जाएगा, चाहे तो आप 3 decimal places तक निकाल सकते हैं। 2.812 होगा और उसको राउंड ऑफ करके 2.81 लिख देंगे बस। अब बताइए वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस इज इक्वल्स टू, क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। कितना बताइए गैस का, 2.81 अपॉन 0.09, रिमूव द डेसिमल्स, implies 281 upon 9, and then when you divide, answer will come as 62.5 vapor density. So this gas is 62.5 times heavier also, and its vapors are that dense. शुरुआत से रिकैप करते हैं, कोई बात नहीं। रिकैप में हमको एक गैस दी थी, सबसे बड़ी दिक्कत उस गैस ने करी। अगर क्वेश्चन इतना होता तो आराम से समझ आ जाता। देखिए यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक गैस का वेट है 1.5 ग्राम्स, एक गैस का वजन कितना है 1.5 ग्राम्स, और हमारी हाइड्रोजन का वजन है 0.09 ग्राम्स। बस दिक्कत ये है कि दोनों का क्या सेम होना चाहिए था, वॉल्यूम। लीटर 1 लीटर तक किसका, हाइड्रोजन का। वी हैड 2 choices. What? Either convert hydrogen into 533.37 या उसको 1 लीटर बना दीजिए। हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड से गैस को 5.33 से कितना निकाल लिया, उसका 1 लीटर का मास निकाला, तो वो आया 2.8। 1 लीटर गैस का वजन है 2.8 और 1 लीटर हाइड्रोजन का वजन है 0.09, तो हमने उन दोनों को डिवाइड करा दिया, ठीक है। बट इससे पहले वाली कहानी जो थी वो थोड़ा ट्रिकी थी, वो समझ आ गई। उसमें जो गैस थी अपनी मर्जी से दी हुई थी, मजे में घूम रही थी गैस अपने टेम्परेचर पर, अपने प्रेशर पर, तो उसको खींच कर हम कहा लेके आए, एसटीपी पर। कौन सी इक्वेशन से,
गैस इक्वेशन P1 V1 T1, तो उससे उसकी एक्चुअल वॉल्यूम आई जो 700 थी वो 700 से घट के कितनी हो गई 533। क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया। बस यूनिट चेंज कर दी, बस यूनिट कैसे मतलब वो लीटर कर दिया और आंसर आ गया। बेटा दिस इज द सेकंड टाइप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप।